Hello everyone, and a very good morning to all of you, and welcome to BYJU'S Exam Prep, the most comprehensive preparation app for all exams. So as we all know, from Monday to Thursday, 11 a.m. in the morning, we come up with the Hindu analysis. Today is 1st February, that is Thursday, and we are here with the Hindu analysis of 1st February. As 1st February, we'll be having a budget today, okay? So do follow that. That would be also very beneficial. So let's start. Am I audible? Analysis. Okay, so let's start with the first article. ED arrest Hemant Soren Champai to take over as the chief minister. So this we were discussing it and for the past 2-3 days. These articles were coming in. Okay, so basically enforcement directorate on Wednesday arrested Hemant Soren, the chief minister of Jharkhand, and before that actually he resigned to the governor, and he is supposed to hand over the post of chief minister to his transport minister Champai Soren. Okay, so he is Champai Soren, and he will be the new chief minister as Hemant Soren resigned just before the arrest. Okay, so just have an idea about it. Mr. Champai Soren is an Indian politician who is going to serve as the chief minister designate. So अभी बनाया गया उनको है ना, मतलब so he will take the oath very soon. And he is a member of JMM, so the same political party with which the chief minister, the outgoing chief minister Hemant Soren belongs to, because now he has been arrested by enforcement directorate. So that is what you should be knowing it. So ED arrest Hemant Soren after he resigns as the Jharkhand chief minister. This you should be knowing about it. है ना, missing देखो ये yesterday का article था, missing chief minister Soren shows up in Ranchi. So there were some reports 2 days back that the chief minister is missing and all untraced. So later on yesterday we saw this article that no, he was present. He was shown in media in Ranchi, है ना. So he got to know that okay, and he met the leaders, his MLAs and all, है ना. So he belongs to actually Jharkhand Mukti Morcha. This is the political party which is in power along with the alliance. So it is actually having a grand alliance, okay, with Indian National Congress, okay, then RJD and then NCP, okay, plus Jharkhand Mukti Morcha, okay. So these actually total form what we call it as Grand Alliance, या Mahagathbandhan in Jharkhand. The term Hindi word is Mahagathbandhan. So they are actually in alliance. Mahagathbandhan. Okay. So just have an idea about that. So just be following that. Okay. If you are watching this class, नीचे जाना, link है. One-on-one counseling session का link is there. So click on this link. You will then get this Google form and fill this Google form. That would be very, very beneficial for you. Okay. Because when you fill this Google form, our team will help you get to know about the courses available, what are the prospects you have in this course and all. Okay. एक और था, केजरीवाल gets ED summons for 5th time in excise case. Okay. I am from Jharkhand. There are a lot of political unrest. Yes, Alia Kausar. Yes. So let's wait for the things. What will happen? So there will be new chief minister in Jharkhand. Missing those days of my preparation. Good luck. Okay. Yes. Good luck, Garima Chaudhary. Good morning. Yes. To you as well, है ना. Okay. So देखो actually क्या है कि enforcement directorate had issued summon to Delhi Chief Minister Mr. Arvind Kejriwal for the earlier also for 3-4 times earlier, and this is the 5th time he has been summoned. तो liquor policy case में कुछ excise से related कुछ case है ना. देखो excise tax, अच्छा एक homework है, आप ये बताना excise tax जो होता है, ये excise tax जो होता है वो किस प्रोडक्ट पर लगता है, which type of product पे excise tax लगता है. So go and find out. And excise tax, whether it is comes under GST or outside GST, ये find out करो. So these are the homework. ठीक है. Okay. So that is what you should be knowing it. Arvind Kejriwal has skipped 4 summons issued by the probe agency so far, calling them illegal and politically motivated. तो अरविंद केजरीवाल साहब ने कहा है कि ये इलीगल है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड, इसलिए 4 बार बुलाया गया था ईडी के द्वारा, तो वो नहीं गए. 5वीं बार फिर सम्मन इशू किया गया 2 फरवरी को. Was for 2 फरवरी. क्या आपको 2 फरवरी यानी कल जो है उनको पेश होना है. The enforcement directorate has issued summon to the chief minister and all. Okay. Alcohol, Ashwadhan Ramesh. Yes. देखो एक्साइज टैक्स जो होता है, yes, अल्कोहल पर लगता है, yes fine, बट सिर्फ अल्कोहल पर नहीं लगता है. ठीक है. It is true that in many of the states a big chunk of excise duty actually comes from the alcohol, बट और भी चीजें होती हैं. ठीक है. बट मेजोरिटी कई बार कई स्टेट में अल्कोहल से होता है.
Yes, it's true. But in other actually ये मैन्युफैक्चरिंग पर लगता है ना, so other things की मैन्युफैक्चरिंग पर भी लगता है ना, ठीक है. So just have an idea. Alcohol is one of the it is excluded from GST. Correct. देखो क्या है, GST में से excluded जो है, we had discussed it earlier also, जैसे अल्कोहल पर जितने भी टैक्सेस होते हैं ना, इलेक्ट्रिसिटी है ना, अल्कोहल हुआ, इलेक्ट्रिसिटी हुआ, देन वी हैव एक दो और चीजें उस पर जो है जीएसटी एक्सक्लूडेड है, ठीक है. सो जस्ट हैव एन आइडिया अबाउट दैट. हाँ, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ठीक है. सो जस्ट हैव एन आइडिया अबाउट दैट. ओके, यस, है ना. सो दैट इज व्हाट यू शुड बी नोइंग. एनफोर्समेंट डायरेक्टर के बारे में थोड़ा सा जाना. इट्स अ लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी. मेन इसका काम क्या है? इट वर्क्स अंडर डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. मेन जॉब इज टू कर्ब मनी लॉन्ड्रिंग, फॉरेन एक्सचेंज वायलेशन को कर्ब करना, एंड ऑल्सो दीज आर मेन थिंग, है ना, टू स्टॉप सर्कुलेशन ऑफ ब्लैक मनी. तो इसके पास जो पावर होते हैं वो फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, फिगरेटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट, ये तीनों लॉ के अंडर पावर होते हैं, ठीक है. सो दैट इज व्हाट यू शुड बी नोइंग अबाउट इट. ओके, व्हाट इज द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? 31, 34, 41, 37. Okay, Gauri Sethi is also watching. There are a lot of old students of mine who is watching the class. Yes, good. What is the total strength of the Supreme Court of India currently? मतलब टोटल स्ट्रेंथ कितना होता है ये बता दो. ये सब एग्जाम पूछा था सवाल, जैसे अगर आप अटेम्प्टिंग जामिया, स्लैट, एमएचसीटी, दे आस्क दीस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है. टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज 34. So B is the right answer. Yes, actually it is 33 plus 1 Chief Justice of India. So we are having 34. Yes, Astha, Vasti, Ramesh, Gauri Sethi, you are right. Actually हुआ क्या, we recently few days back Justice PB Varale, he was actually the Chief Justice of Karnataka High Court, has been sworn in as a judge of Supreme Court. तो एक सीट वैकेंट थी तो अब उसमें फिल हो गए, and he is actually, है ना. ये भी पूछते हैं कि who administers the oath of Chief Judge of Supreme Court? So the answer is Chief Justice of India. देखो, है ना, ये oath read करेंगे and he will follow it, है ना, like that. So that you should be knowing it. Takes Dalit representation Supreme Court to 3. So we are now having 3 Supreme Court judges currently who are Dalit. ठीक है. And he's also Dalit. Okay. Now, तो अब हुआ क्या कि when actually he has been made the judge of Supreme Court, so the vacancy, there's a vacancy created as far as Chief Justice of Karnataka High Court is concerned. है ना, तो वैकेंसी क्रिएट हो गया, तो उसमें अभी जस्टिस पीएस दिनेश कुमार हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ कर्नाटक हाई कोर्ट. ठीक है, बस इतना पता होना चाहिए. These are the things you should be knowing it. Okay, so 34 की पूरी full strength है अभी currently. Okay, just before moving on, guys, download our app, go to CLAT section, and talk to our counselor. पे click करना, and you will get to know more about our courses and all. And 4th February को 11 AM in the morning, we'll be having a scholarship test. If you qualify it, you will get up to 90% off on all our paid courses. Like this is for 2025. If you are planning 2025 CLAT exam, ठीक है. Call on this number 95388956788. And this is 2024 के लिए test series. Go for that. Okay, let's move on further. What makes India-France strategic partnership tick? अब देखो ये he's राकेश सूद, he's a former ex-IFS Indian Foreign Service officer, ठीक है, and he is talking about India-France relationship, ठीक है. अब देखो जैसे strategic partnership जो होता है ना, थोड़ा अच्छा partnership होता है. अगर if the two countries having strategic partnership, it is considered as a better relationship. स्ट्रैटेजिक टर्म जो डिफेंस रिलेटेड होता है ना, तो थोड़ा इट्स कंसिडर्ड एज मोर बेटर रिलेशनशिप, ठीक है, इस तरह समझ सकते हो. अब देखो इज टॉकिंग अबाउट इमैनुअल मैक्रोन वाज इनवाइटेड एज अ चीफ गेस्ट इन द रिपब्लिक डे, है ना. ही वाज आल्सो प्रेजेंट इन G20 समिट. पीएम मोदी वाज इनवाइटेड एक्चुअली एज अ चीफ गेस्ट एट फ्रांस बास्टाइल डे एंड ऑल, ठीक है. अब देखो फर्स्ट ऑफ ऑल, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट इट, then we are talking about Quad also. The first, there's a question: which of the following is not a member of Quad? India, UK, Japan, Australia. बताइए तो. Quad मतलब Quadrilateral Security Dialogue. Quadrilateral Security Dialogue. Please tell me. Which of the following is not a member of Quad? Yes, very good, Ramesh. B is the right answer. We have discussed it earlier as well, है ना. So, India, Japan, Australia, USA, ठीक है. So it forms a quadrilateral. That is why we call it as Quad, ठीक है.
Yes, very good. Ramesh, Harshvardhan, Astha, Avasti, Gauri, Sethi, Alia, Kausar, you all are right. So B is the right answer. UK. अब देखो इसमें एक चीज ये बताया कि earlier actually we were expecting कि we should have a quiet summit where Biden will be invited as a chief guest in Republic Day. ठीक है, तो पहले ही बात हुई थी कि इंडिया ने सोचा था कि बाइडन को बुलाया जाएगा रिपब्लिक डे में और क्वाइट समिट होगी. But Biden actually said कि he will not come and there will not be any quiet summit. उसके बाद then we invited French President Emmanuel Macron. ठीक है, तो if then Emmanuel Macron was invited. Now why is Emmanuel Macron's visit important? Because इससे पहले एक और हुआ था जिसमें फ्रांस ने इंडियन प्राइम मिनिस्टर को बुलाया था. ठीक है, ओके, and that was in the Bastille Day parade that happened last year on 14 July. Last year. ठीक है, देखो क्या हुआ कि लास्ट ईयर इंडियन प्राइम मिनिस्टर वाज इनवाइटेड टू फ्रांस एज अ चीफ गेस्ट इन बास्टाइल डे सेलिब्रेशन. इसीलिए दिस ईयर वी हैव इनवाइटेड द फ्रेंच प्रेसिडेंट ऑन 26 जनवरी. ठीक है, अब बास्टाइल डे क्या होता है? आई होप यू आर अवेयर इफ यू हैव रेड हिस्ट्री एंड ऑल. 14 जुलाई 1789. दिस इज द डेट ऑन विच फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्टेड, ऐसा कहा जाता है इफ यू हैव रेड हिस्ट्री, है ना. Storming of Bastille Fort. Storming of Bastille Fort, है ना, happened on 14 July. तो इसीलिए 14 जुलाई को they celebrate it as national festival. जैसे हम लोग क्या 26 जनवरी या 15 अगस्त होता है, that is similar to that. On 14 January, 14 July, France actually have their own, you can say, national festival and all. तो उसमें invite किया गया था. In fact, PM मोदी was given Legion of Honor. एक अवार्ड होता है, go and find out about it. Legion of Honor award, highest civilian award of France. Legion of Honor. Okay, so this was given to PM Modi by France. Like very similar to आप कह सकते हो भारत रत्न टाइप की चीज. Like we have in India भारत रत्न highest civilian award, so similar to that Legion of Honor is a highest civilian award of France. ठीक है, okay, so just have an idea about that. तो इसी की बात कर रहे हैं, दैट इज व्हाट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट. इस पूरे में इसी की बात हो रही है. ओके, देन लेट्स मूव ऑन फर्दर. देन द ऑथर इज टॉकिंग अबाउट, देखो अब क्या बता रहे थे कि जब 26 जनवरी 1998 को भी फ्रेंच प्रेसिडेंट आए थे. सो फ्रेंच प्रेसिडेंट वाज इनवाइटेड एज अ चीफ गेस्ट एंड एक्चुअली इट एस्टैब्लिश्ड फॉर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एंड ऑल. उसी के कुछ महीने बाद मई 1998 में वी टेस्टेड न्यूक्लियर टेस्ट, है ना, दैट इज कॉल्ड एज पोखरान 2. आपको पता होगा, जैसे लेट मी राइट इट, 26 जनवरी 1998. सो रिपब्लिक डे, फ्रेंच प्रेसिडेंट कम्स एज चीफ गेस्ट. ठीक है, ओके, इन रिपब्लिक डे. फिर उसके बाद क्या होता है, मई 1998 वी टेस्टेड पोखरान 2, है ना, पोखरान 2, जिसका दूसरा नाम है ऑपरेशन शक्ति. And here actually from here APJ Abdul Kalam became famous from here, है ना. APJ Abdul Kalam, एक दो और साइंटिस्ट थे बट APJ Abdul Kalam काफी फेमस हो गए उस टाइम पर, है ना. From here one of the leading role was of APJ Abdul Kalam. So उसके बाद हुआ ये था कि when in May 1998 when India tested Pokhran 2, many of the nations actually boycotted it or many of the nations criticized it. ठीक है, बट फ्रांस ने उस वक्त भी कुछ हद तक एक तरह का सपोर्ट ही किया था ना. दैट इज व्हाट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट. उसके बाद लिख रहे हैं कि फ्रांस हैज बिकम द फर्स्ट नेशन एक्चुअली टू डिफेंड दैट इट इज द फर्स्ट P5 नेशन टू सपोर्ट इंडियाज क्लेम फॉर परमानेंट सीट. देखो आई होप यू आर अवेयर दैट इन UN Security Council, we have permanent 5 members and 10 non-permanent members to be elected for 2 years, right? ठीक है, अब देखो ये जो P5 है, यही P5 है चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके, यूएस. व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ P5? यू विल हैव वीटो पावर्स, है ना. यू डोंट नीड टू फाइट इलेक्शन अगेन एंड अगेन टू बिकम अ मेंबर ऑफ UN सिक्योरिटी काउंसिल. इसमें इंडिया ने कई बार कोशिश किया. इंडिया हैज ट्राइड अ लॉट ऑफ टाइम्स टू बिकम द मेंबर ऑफ P5 एंड द फर्स्ट टू सपोर्ट दिस वाज एक्चुअली द फ्रांस, है ना. ये लिख रहे हैं कि फ्रांस जो पहला P5 में मेंबर है जिसने सपोर्ट किया कि इंडिया को भी P5 में आना चाहिए, मतलब परमानेंट सीट मिलना चाहिए. अगर इंडिया आ जाएगा तो P5 से फिर P6 हो जाएगा ना. हाँ, सो मतलब कहने का मतलब है कि दे सपोर्टेड परमानेंट मेंबरशिप फॉर UN सिक्योरिटी काउंसिल फॉर इंडिया, है ना. ओके, यस, नेशनल टेक्नोलॉजी डे वही 1998 के टेस्ट से मनाया जाता है. यस, यू राइट. यस, गौरी सेठी, यू राइट. India and France have valued strategic autonomy in their own fashion. India adopted non-alignment and Second World War they became part of NATO. तो एक कॉन्सेप्ट होता है स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, आजकल खूब यूज किया जाता है. स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी,
पहले नॉन अलाइनमेंट कहते थे। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी में हर कंट्री का अपना सॉवरेन राइट है कि वो कौन सा किसके साथ अलाइन करे। सो जैसे फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर पीरियड इंडिया चोज नॉन अलाइन मूवमेंट, है ना, नॉन अलाइंड। सो नाइदर वी विल सपोर्ट द वेस्टर्न ब्लॉक, नाइदर वी विल सपोर्ट कम्युनिज्म, ठीक है। सो कम्युनिज्म में यूएसएसआर था एंड वेस्टर्न या कैपिटलिस्ट ब्लॉक में यूएसए था। सो इंडिया फॉलोड द पाथ ऑफ नॉन अलाइनमेंट, ठीक है, तो इंडिया यहां था। जबकि फ्रांस जो था वो यहां सपोर्ट कर रहा था। फ्रांस वाज एक्चुअली पार्ट ऑफ हियर, है ना, नाटो का, बिकॉज फ्रांस इज आल्सो अ नाटो मेंबर। तो एक तरह से फ्रांस वाज सपोर्टिंग द वेस्टर्न ब्लॉक और कैपिटलिस्ट ब्लॉक, एंड इंडिया डिसाइडेड टू फॉलो नॉन अलाइनमेंट, नाइदर सपोर्ट मिलिट्री सपोर्ट फ्रॉम कम्युनिज्म नॉट टू नाटो और वेस्टर्न कंट्रीज, है ना। सो दीज आर द थिंग्स बीइंग टॉक्ड अबाउट। फिर उसके बाद क्या बता रहा है, द न्यूक्लियर डायलॉग एस्टैब्लिश्ड इन मई 1998 ग्रू इनटू ब्रॉडर स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी, है ना। तो फिर उससे क्या हुआ कि एक्चुअली फ्रांस आल्सो सपोर्टेड इंडिया एंड ऑल आफ्टर दिस न्यूक्लियर टेस्ट एंड ऑल, है ना। सो दीज आर द थिंग्स बीइंग टॉक्ड अबाउट, है ना। अब 6 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन की बात करें। अब देखो ये है कालवरी क्लास सबमरीन या स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन। तो ये 6 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है, आईएनएस कालवरी, खांदेरी, करंज, वेला, वागीर, वागशीर। ओके, so these are the 6 and these are manufactured by Mazagon Dock Shipbuilders Limited, एक मुंबई बेस्ड शिप मेकिंग कंपनी है, ठीक है। एंड नेवल ग्रुप जो है फ्रांस बेस्ड शिप मेकिंग कंपनी है, ठीक है। सो दोनों ने मिलकर ये 6 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन बनाए। जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज आईएनएस कालवेरी सबमरीन, समझते हो ना, यू अंडरस्टैंड, है ना, इसको पनडुब्बी कहते हैं ना हिंदी में। सो दिस हैज बीन मेड बाय दिस टू, ठीक है। सो जस्ट हैव एन आइडिया अबाउट इट। Okay, what is the name of the company that manufactures Rafale jet? इसकी भी बात किया उन्होंने कि we have bought Rafale jets from France. Okay, so which are the following company manufactures it? General Atomics, Dassault Aviation, Lockheed Martin, RTX Corporation. What is the right answer? Anyone? Yes, Dassault Aviation from France, है ना। ये सब तो यूएस का, ये भी यूएस का, ये भी यूएसए का, है ना। सो द राइट आंसर इज बी, डसॉल्ट एविएशन। यस रमेश, यू आर राइट, गुड, है ना। और ये काफी न्यूज में था, कई बार सवाल भी पूछा गया एग्जाम में, है ना। आस्था अवस्थी, गौरी सेठी, आलिया कौसर, हर्षवर्धन, यू आर राइट, है ना। फ्रांस, मिस्टर मैक्रोन्स विजिट सॉ द कंक्लूजन ऑफ इंडिया फ्रांस डील, है ना। तो बहुत सारे डील भी हुए, जैसे सिविलियन हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चर करेंगे, है ना, मिलिट्री एयरक्राफ्ट हैज ऑलरेडी बीन सेटअप, ठीक है। ये दोनों पढ़ लीजिएगा कि Tata and Airbus has conducted an agreement to set up a final assembly line for H125 civilian helicopter बनाने के लिए, और C295 military transport aircraft बनाने के लिए वडोदरा में, ठीक है। So these two agreements were signed. तो ये वाला है ना, list of deals inked, announcement made, तो इसको पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा, just go and read it, ठीक है। What are the agreements were done between the two, ठीक है। Now the strategic dialogue helped restart India इसरो और CNES। देखो एक और है, इसरो जो है इंडिया की स्पेस एजेंसी, बस CNES इज द स्पेस एजेंसी ऑफ फ्रांस। बोथ हैव आल्सो साइंड एन एग्रीमेंट एंड ऑल। उन लोगों ने भी कई सारे एग्रीमेंट साइन किया, जैसे न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, तो NSIL इज कमर्शियल आर्म ऑफ इसरो, ठीक है ना, कमर्शियल आर्म ऑफ इसरो व्हिच हैज साइंड अ डील विद द फ्रांस एंड ऑल, ठीक है। सो दीस आर द थिंग्स बीइंग टॉक्ड अबाउट। एट डिको इट वाज लेस देन 3000, नॉट फॉर मोर देन 10,000, है ना। अब देखो क्या बताया जा रहा है कि अब जो है ना, 9 मोर स्टूडेंट्स आर गोइंग टू फ्रांस टू स्टडी, ठीक है। फ्रांस पहले देखो लिखा ना कि 10 साल पहले 3,000 लोग थे, अब 10,000 लोग जाते हैं, हो सकता है 2030 तक 30,000 स्टूडेंट्स विल गो। सो फ्रांस को इससे बेनिफिट होता है, व्हाई? बिकॉज व्हेन वी गो वी एक्चुअली गिव द फीस। जब इंडियन स्टूडेंट्स फ्रांस जा रहे हैं फीस देंगे पढ़ने के लिए, तो फ्रांस को फायदा होगा, है ना। मेनी टाइम्स द इंडियन स्टूडेंट गो एंड स्टार्ट डूइंग जॉब देयर, सो द फ्रांस गेट स्किल एज वेल, ठीक है। So that is the benefit the France would be getting and all. खैर ये सब बात हो रही है। The next is winners and losers selection in Pakistan go according to the script written by the army. So according to the author, मतलब ये है कि army of Pakistan interferes in the election and all, that is what the author says. ये editorial है, so these are written by the Hindu journalist, है ना, editors. So the back-to-back jail sentence for former Pakistan Prime Minister was handed in 2 different cases and all. अब देखो क्या हुआ कि recently 2 केस में जेल गए, ठीक है। ये दोनों एक दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर है। एक है साइफर केस वी डिस्कस यस्टरडे, वेयर एक्चुअली ही वाज अरेस्टेड, ही वाज जेल्ड फॉर वायलेटिंग OSA, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट। मतलब हम लोग यस्टरडे डिस्कस किया था, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट ये होता है एक्चुअली इन दिस, अ पाकिस्तानी एम्बेसडर वाज सेंडिंग सम message from Washington DC to Pakistan, and this was revealed by
इमरान खान, दैट इज एन एलिगेशन। एक इल्जाम ये है साइफर केस में कि उन्होंने सीक्रेट डॉक्यूमेंट को पब्लिक में रिवील कर दिया और इसके लिए उनको 10 साल की सजा होगी। द नेक्स्ट वन इज विच गॉट यस्टरडे, तोशा खाना केस में एक और करप्शन का चार्ज, उसमें ही गॉट 14 years in jail along with his wife, तो 10 साल प्लस 14 साल तो ऐसे ही हो गया। ओके, एंड दिस दे गॉट इट इन द लोअर कोर्ट, तब देखो हो सकता है ही माइट अपील इन द हाई कोर्ट एंड ऑल। So these are the things being talked about. Second thing, what is his name of political party? So PTI, Pakistan Tehreek-e-Insaf. This you should be knowing about it. ठीक है, so ये बात करें, then the author is talking about in the past also Nawaz Sharif was removed by this in Panama Papers case. ये भी बहुत famous हुआ था, Panama Papers case बहुत famous हुआ था, where actually a lot of allegation of corruption were exposed, है ना। So in that case Nawaz Sharif was disqualified from being the prime minister by the Supreme Court of Pakistan. I think ये 2017 के आसपास की बात होगी, हाँ 2017 लिखा है। So in 2017 around, the Supreme Court of Pakistan removed the Prime Minister of Pakistan Nawaz Sharif for holding the office because of this corruption allegation and all. ठीक है, so that is what you should be knowing. And Pakistan court removes Nawaz Sharif from office in Panama Papers case and all. So these things are being talked about. Fine. The next one is what is the need for a governor is a reticence and all. अब देखो इसमें क्या है, he is a foreign service officer retired, है ना, and he is writing about it. देखो ये एक पर्सनल एग्जांपल है, तो उतना पर्सनल एग्जांपल नहीं जाना चाहिए, we are not going in that detail. Just have an idea. देखो क्या होता है ना कि गवर्नर और चीफ मिनिस्टर में, the chief minister is elected and the governor is appointed by the president. So democratic values ये कहती है that the idea of democracy says that chief minister should work for all practical purpose because he is elected by the common people, है ना। MLAs के द्वारा चुने जाते हैं, MLAs are elected directly by the people and MLAs choose the chief minister. So that is why the common constitutional belief or the constitutional expert says is the chief minister should have all the powers as far as state administration is concerned, and governor is a nominal head, है ना। All power for all practical purpose should be with the chief minister. But there are some cases where कभी-कभी होता है कि गवर्नर और सीएम में टसल हो जाता है, गवर्नर becomes proactive and all, and this creates problem and all. So these are the things being talked about. If you are interested, read article 163, 164 ये सब पढ़ना, ठीक है? Okay, read it. 163 and 164 are related with the Council of Ministers, Governor, Chief Minister and all. Okay, yes, Asta Basti, you are right, हाँ. That is what is being talked about. एक साइड में आर्टिकल थी, ऑस्ट्रेलियन ओपन gave space to players from different eras. अब देखो क्या अभी रिसेंटली ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ है। ऑस्ट्रेलियन ओपन क्या होता है? दिस इज एक्चुअली अ गेम ऑफ इन टेनिस, ठीक है, इसी की बात कर रहे हैं। सो मेंस सिंगल विनर इज जानिक सिनर, वुमेन सिंगल विनर इज आरियाना साबालेंका, मेंस डबल में एक इंडियन है रोहन बोपन्ना एंड मैथ्यू इब्टन, तो ये शायद पूछ सकते हैं, जब भी इंडियन होता है ना, सो इट बिकम्स इंपॉर्टेंट, ठीक है। रोहन बोपन्ना इज अ मेंस डबल विनर इन ऑस्ट्रेलियन ओपन along with मैथ्यू इब्टन, ओके, है ना। तो ये 14 से 18 जनवरी को प्ले किया गया, है ना, इन विक्टोरिया, मेलबोर्न, ऑस्ट्रेलिया। ओके, द नेक्स्ट इज फाइंडिंग लाइट इन म्यांमार्स डार्कनेस, इट्स रिटन बाय राजीव भाटिया। सो देखो एक्चुअली क्या है, म्यांमार यहाँ पर है एंड इट इज इन डार्कनेस। क्या मतलब हुआ? देखो एक्चुअली क्या है, बिफोर 1 फरवरी 2021 देयर वाज अ गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, मतलब वो भी पूरी तरह डेमोक्रेटिक नहीं था, बट स्टिल टू अ लार्ज एक्सटेंट यू कैन से कि चलो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट था। नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी वाज रूलिंग इट, ठीक है। सो उसके प्रेसिडेंट थे, प्राइम मिनिस्टर थे एंड स्टेट काउंसिलर भी थे। सो द स्टेट काउंसिलर फ्रॉम नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, नाम लिख देता हूं पार्टी का, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी। सो दिस इज अ पॉलिटिकल पार्टी ऑफ ऑंग सान सू की, ऑंग सान सू की, ओके, ठीक है। ओके, तो यही बता रहे है ना। नाउ इट इज डब्ड एज सिक मैन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, तो इस रीजन को साउथ ईस्ट एशिया कहते हैं, मैंने बताया ये वाला रीजन जो है, तो उसमें साउथ ईस्ट एशिया के सिक मैन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया कहा जाता है किसको? म्यांमार को। भाई आई होप यू आर अवेयर बिकॉज ऑफ मिलिट्री कू एंड ऑल। नाउ सो ऑंग सान सू की इज द लीडर ऑफ म्यांमार्स नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी। शी वाज गिवन नोबेल प्राइज इन द ईयर 1988, 1991, 1996, 2001. Now I think she is in jail for almost, and the jail term is something around 27 years. लगभग 27 साल के आसपास की उनको सजा हुई जेल की। कैन यू प्लीज टेल मी दैट शी गॉट नोबेल प्राइज इन विच ईयर? दूसरा बताइए, म्यांमार की कैपिटल क्या है एंड करेंसी क्या है? प्लीज टेल मी, एनीवन? शी वाज गिवन नोबेल प्राइज इन द ईयर 1991 में मिला था, ठीक
ठीक है। एंड फॉर 888 रेवोल्यूशन, तो 8 अगस्त 1988 को एक रेवोल्यूशन हुआ था, 888 अपराइजिंग कहते हैं उसी के लिए, ठीक है। गो एंड रीड अबाउट 888 अपराइजिंग इन म्यांमार, है ना। 1991 को शी गॉट नोबेल पीस प्राइज। यस आलिया कौसर, यू आर राइट, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो वो स्टेट काउंसलर रही थी। शी कुड नॉट बिकम द प्राइम मिनिस्टर बिकॉज देयर वाज सम रीजंस, ठीक है, उतना हम नहीं जा रहे, वी आर नॉट गोइंग इन दैट डिटेल, बट शी वाज द स्टेट काउंसलर बिफोर बीइंग रिमूव्ड। तो 1 फरवरी 2021 को मिलिट्री केम टू पावर एंड ही इज द आर्मी चीफ, ही टुक ऑल द चार्जेस एंड ऑल, ठीक है। ओके यस, हाँ तो देखो मैं कैपिटल पूछा था। एक तो म्यांमार का ओल्ड नेम जो है वो बर्मा है, ये क्लियर कर लीजिएगा, ओल्ड नेम है वो बर्मा है। कैपिटल जो है किसी ने यांगून लिखा है या यांगून, अर्लियर इट वाज द कैपिटल, यांगून का पुराना नाम है रांगून, ठीक है। दिस वाज एन अर्लियर कैपिटल बट आई थिंक 2015-16 के आसपास इट गॉट चेंज टू नाइपीटाओ। नाइपीटाओ भी लिखते हैं, नाइपीटाओ भी लिखते हैं, ठीक है। सो यू शुड रिमेंबर दैट, बी इज द राइट आंसर। ओके सो टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट में राइजिंग टेंशन इन द कोरियन पेनिनसुला। अब देखो ये भी क्वाइट इंपॉर्टेंट है, समझ लो। तो यहाँ पे इंडिया है, here is China, this is US, this is Japan. Now why I'm telling you this is South Korea and this is North Korea, ठीक है। NK I'm writing. Now North Korea is considered as a communist country. Let me write it clearly. North Korea is considered as a communist country and there is dictatorship, है ना। I hope you are aware, आपने नाम सुना होगा, किम जोंग उन is the dictator and all. Now, South Korea is a democratic country. There is elections happening every 5 years and all. Okay. Now, अगर आप देखोगे, the South Korea is more near to Japan and USA. So, because both are, I mean, वही democratic capitalist type country and all, है ना. So pro capitalism and all the industries are there. जैसे आपने नाम सुना होगा, Hyundai, और बहुत सारी कंपनी है, किया, है ना, बहुत सारी कंपनी फ्रॉम साउथ कोरिया इज देयर। बट इन नॉर्थ कोरिया इज कम्युनिस्ट कंट्री एंड इट इज मोर अलाइन टुवर्ड्स चाइना। तो नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया का टसल चलता रहता है, आई मीन दे आर एक्चुअली देयर इज अ टसल बिटवीन द टू, और इसका हिस्टोरिक रीजन है, ठीक है। वी आर नॉट गोइंग इन दैट डिटेल एंड ऑल, बट जस्ट हैव एन आइडिया अबाउट इट, ठीक है। सो साउथ कोरिया, जापान एंड यूएस आर ऑन वन साइड एंड नॉर्थ कोरिया इज सपोर्टेड बाय चाइना एंड ऑल, दैट इज व्हाट द एक्सपर्ट सेज, ठीक है। खैर now so that is what is being talked about कि rising tensions, मतलब टेंशन लगा रहता है। lot of times North Korea test nuclear weapon, आपने देखा हो कई बार intercontinental ballistic missile और कौन मिसाइल टेस्ट करते रहते हैं। so it actually creates a fear to South Korea and Japan, जब इतना न्यूक्लियर टेस्ट करा कहीं अगर नीचे गिरा दिया or something like that, so that is also sometimes it leads to rising tensions in the Korean peninsula। इसी को Korean peninsula कहेंगे, ये हुआ Korean peninsula, ठीक है। Okay, now there's a question. North Korea and South Korea is demarcated by 17 degree parallel, 49 degree, 38 degree, 10 degree parallel. ये question कहीं आया था, I don't remember the exam, but somewhere this question was asked. सबको लाइक बटन प्रेस करते जाओ, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, है ना। North Korea and South Korea is demarcated by which parallel? Anyone? यस रमेश, वेरी गुड, 38 डिग्री पैरेलल इज द राइट आंसर, ठीक है। तो 38 डिग्री पैरेलल का क्या मतलब हुआ, देखो जैसे ये इक्वेटर है ना, दिस इज 0 डिग्री पैरेलल, यहां से जो लाइन जा रही है, लेट मी मेक इट क्लियरली, है ना, ये 0 डिग्री नॉर्थ हुआ, मतलब 0 डिग्री हुआ, दिस इज 38 डिग्री नॉर्थ एंड दिस इज कॉल्ड एज 38 डिग्री पैरेलल भी कहते हैं इसको, ओके, ठीक है। तो ऐसे कुछ गुजरा होगा, आई एम जस्ट मेकिंग अ रफ स्केच, और इसके ऊपर जाता है यहाँ पर 49 डिग्री पैरेलल, 49 डिग्री नॉर्थ या 49 डिग्री पैरेलल, एंड यहाँ पर कनाडा है और ये यूएस है। सो कनाडा और यूएस के बीच में जो है दैट्स कॉल्ड एज 49 डिग्री पैरेलल या 49 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। सो दैट इज व्हाट यू शुड बी नोइंग, ये यूएस एंड कनाडा के बीच है। ये अंडमान एंड निकोबार को कट करता है, अंडमान एंड निकोबार को सेपरेट करता है, ठीक है। एंड 17 डिग्री पैरेलल नॉर्थ वियतनाम एंड साउथ वियतनाम को सेपरेट करता है, ठीक है। सो जस्ट हैव एन आइडिया, सी इज द राइट आंसर है। Yes, Alia Kausar, Ramesh, Astha, Vasti, Harshvardhan, you all were right. The great internet shutdown, how access to the world wide web is curtailed. तो ये जो आर्टिकल है, this is talking about the impact of internet shutdown. So जैसे इसमें लिख रहे हैं कि Indian economy suffered the loss of $2.8 billion due to 129 separate instances of internet shutdown. Okay, जैसे जनवरी से जून 2023 तक जितना भी इंटरनेट टोटल शटडाउन हुआ है, उसमें $1.9 बिलियन का लॉस हुआ है,
ओके, सो अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट एंड ऑल। तो क्यों होता है, देखो एक्चुअली होता क्या, पहले कोई समझना होगा। जैसे इंटरनेट से सारी चीज कनेक्टेड है ना, एवरीथिंग। नॉट इज वी आर हैविंग ई एजुकेशन, ठीक है, ई कॉमर्स, जितना बिजनेस होता है ई कॉमर्स, अब जितना आप पेमेंट करते हो यूपीआई पेमेंट, सारी चीज ऑनलाइन है, टिकटिंग इज ऑनलाइन, एवरीथिंग इज नाउ ऑनलाइन। ई हेल्थ नॉट इज वी आर हैविंग, ठीक है, ई एफ आई आर, ई कोर्ट, एवरीथिंग इज ई लिंक, है ना, सारी चीज ऑनलाइन होती है। सो इफ इट गेट स्टॉप्स, ऑफ कोर्स द इकोनॉमी विल गेट अफेक्टेड। इससे रिलेटेड एक केस है सुप्रीम कोर्ट में, अनुराधा भासिन केस। दिस इज अ वेरी फेमस जजमेंट। So when there was internet shutdown in Jammu and Kashmir, this case is very famous. The Supreme Court said that any restriction on internet access by the government must be temporarily limited in scope, lawfully necessary and proportionate, है ना। तो एक जजमेंट इसको पढ़िएगा, अनुराधा भासिन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, which is related with the internet shutdown. अब है, आई हैव टोल्ड यू टुडे इज यूनियन बजट इज प्रेजेंटेड एनुअली। आज यूनियन बजट पेश किया जाएगा, सो यू शुड बी नोइंग अबाउट इट। सो दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चंस यू आर सपोज टू आंसर। इनको आप पहचानिए और आंसर कीजिए। ही वाज वंस द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। कोई बता सकता है इनका नाम? कैन एनीवन टेल मी? एंड दीज आर द क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 एंड ऑल। हाँ, देखो ये बता रहे हैं कि 1 फरवरी को प्रेजेंट किया था बजट, लेकिन 2016 से पहले कोई और डेट को प्रेजेंट किया जाता था। उस डेट का नाम बताइए, ठीक है। बिफोर 2016 द बजट वाज प्रेजेंटेड स्लाइटली लेट, ठीक है, इतना मैंने हिंट दे दिया। 2016 से पहले रेलवे बजट और यूनियन बजट अलग अलग पेश किया जाता था, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि रेलवे बजट कब पेश होना शुरू हुआ था। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, सो गो एंड फाइंड आउट। एक और चीज आप बताइएगा होमवर्क की, बजट को कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा टर्म से रिकॉग्नाइज किया गया? कॉन्स्टिट्यूशन सम अदर वर्ड इज मेंशन्ड, ठीक है। एंड व्हिच आर्टिकल टॉक्स अबाउट दिस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? प्लीज आंसर इट इन द कमेंट सेक्शन आफ्टर द क्लास इज ओवर। दीज आर होमवर्क। पहले आपको लिखना है कि पहले को कब पेश किया जाता था। 2016 से पहले रेलवे बजट और यूनियन बजट अलग होता था। रेलवे बजट कब इंट्रोड्यूस किया गया था, कौन सी कमेटी के रिकमेंडेशन पर? देन प्लीज टेल मी that in the word budget is not mentioned in the constitution, some other word is mentioned, I am writing it as x, और वो कौन से आर्टिकल में मेंशन है और वो x क्या है? दिस इज होमवर्क, these were asked in the exam. आई थिंक जामिया में स्लैट में कहीं पूछा था कि बजट का कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म कौन सा है। इट्स अ होमवर्क, गो एंड फाइंड आउट। और नीचे आर्टिकल ही बताना है, कमेंट में नीचे लिखना है, ठीक है। ओके रमेश, यू आर वेरी नियर टू इट बट नॉट 100% करेक्ट, थोड़ा सा फाइंड आउट करो, ठीक है। सो दिस इज द होमवर्क फॉर यू, ओके। Biden government continues to discuss drone deal, says embassy. देखो एक्चुअली MQ-9B Predator drone we are buying it from America, ठीक है। so, उसी का डील की बात हो रही है। एंड दिस ड्रोन इज बीइंग मैन्युफैक्चर्ड बाय जनरल एटॉमिक्स एरोनॉटिकल सिस्टम, ठीक है। तो ये जो है ये ड्रोन बनाती है ना। इसको UAV भी कहते हैं, अनमैन्ड एरियल व्हीकल। आई होप यू आर अवेयर, अनमैन्ड एरियल व्हीकल, ओके, है ना। So this is the classes. If you're watching this class, नीचे जाना, एक लिंक है दिया है 1-on-1 काउंसलिंग सेशन का। Click on this link and please fill this Google form. You will get to know more about our courses and other thing, your prospect of in this course and all. So this is all about today's class. और जो होमवर्क मैंने दिया है उसका आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में कीजिएगा, ठीक है। So please subscribe to our channel, follow us on Instagram, Facebook, Telegram and download the BYJU'S exam prep app. Thank you everyone. Thanks for watching. Have a nice day.